Okay. Am I audible? Am I audible to everyone? Yes, sir. So I think my video is not. So okay, even if my video is not okay, I should start. Should I start, Kushagra? Yes, sir. Please start. Okay. So on behalf of Training and Placement Cell of REC Kannauj, I welcome our respected director, sir, Dr. BDK Patro, our TPO head, Dr. Arun Kumar Singh, sir, all the faculty members, our distinguished speakers, and all my dear students. This webinar on the topic of industrial IoT with LabVIEW, Python, and Android app development has been organized by the TPO of REC Kannauj with Delhi NCR based startup called Lalten Tech. The objective of this webinar is to get our attendees informed about the latest technologies that is being used in our industry right now. So with this, I would like to request our director, sir, to please say a few words before we can start with the webinar. Okay, thank you, Mr. Ashwini. Uh, First of all, I request all the remaining participants to mute their mics. I think कुछ noise आ रहा है कहीं से. All other members, please mute your mics. इसका पता नहीं चल पा रहा. अश्विनी, is there any noise? हाँ, अभी noise थोड़ा आ रहा है. अश्विनी जी, my voice is clear? Yes, sir, your voice is very clear. अच्छा, okay. अभी start. So, the speakers of this particular webinar, they are the two co-founders of Lantin Technology, Mohammed Juhar and Mr. Kusagra Verma. I think I am not pronouncing properly. The coordinators of this particular event, Dr. Arun Kumar Singh, our TPO, and Mr. Ashwini from Electronics Department, and my dear staff members and students. I, on behalf of Rajkot Engineering College, Kannauj, I welcome you all, mainly the team of Lantin Technology and all the participants. Let me tell about REC Kannauj. Let me introduce the REC Rajkot Engineering College, Kannauj first. We are 5-year-old new government engineering college. Our first batch that passed out in the year 2019. In the first batch, we had only one branch, but this year, that is in 2020, the first batch of CS, EC, and civil they pass out, and the second batch of electrical. The placement status of the college, if I tell, so the CS and EC students, they did well, but we are working hard for electrical and civil engineering students. About the topic of this event and about the college also, we are working hard for the infrastructure because so many issues are there from the government end. So we are working hard to provide the required infrastructure to the students and the staffs for betterment of the college. And as a new college, it's doing good. Now, about the topic, it's a very good topic, that is industrial IoT with
LabVIEW, Python, and Android. I think with this particular 2-hour session, uh, the co-founders of this company, they will give a brief about their company, how they got success in opening and running the organization, and what is the scope of the area, that is industrial IoT. As we all know, IoT is the latest emerging trend of research. If you want to use, or if you want to design smart cities, smart campus, smart home, smart office, or smart industry, you have to use the concepts of IoT. Means you have to use different sensors, you have to store the data in the cloud, and you have to manage the things in nicely, and so that the environment will act smartly. So I hope in this today's session, the experts or the speakers, they will give you some idea about this latest trend, that is about industry 4.0 and all the scope that is with this particular area of research, and the application of the LabVIEW, Python, and Android, and the interlink, the use of these particular environments in IoT, industrial IoT, that I think they will cover. And I hope this particular webinar will be a it's helpful for our students, and as we all know, the CS and EC students, they are already they are studying this particular subject, and few of the students, they are doing their project also. In the last year, few students, they did few projects on this particular topic, that is IoT related. They designed models for smart home, for pollution control, and other things. I think this type of webinar will help our students in their career and in their projects also, and they will came to know about the latest trends in the market. So without taking much time, I congratulate the organizing team, and I hope our students will gain maximum out of this particular webinar. Thank you. Thank you very much, Director Sir, for your very valuable words. With this, I would like to invite Mr. Vikram Singh Rajput, the founder of Creative Genic Solution, to tell us about the company. Thank you, sir. Thank you very much, and good morning to all of you. Thank you for inviting me and introducing me with such a kind and great word, sir. I would like to express my gratitude and thanks to Honorable Director, sir, for giving us this golden opportunity to conduct the virtual workshop on 0 to 1, which is, I'm telling you, it's going to be a very beneficial for our students, as it will reflect industrial IoT with all the basic amenities that is being required technically. Sir, we at Creative Genic Solutions, with collaboration with Lalten Tech, are into three major field of work, which are industrial consultancy, prototyping services, and product development solution. And last but not the least, we are doing online skill-based training programs like digital manufacturing, industrial automation, Android app development, CNC technologies, AutoCAD and GD&T, and 0 to 1, bridging the gap between hardware and software, which is our latest edition of online skilling development. And I would also like to convey my special thanks to all the organizers and to all the students who has joined us for this workshop. Talking about today's workshop on 0 to 1, the main objective of this workshop is to give students a working knowledge of integrating development platforms together, and in this process it will help students to create powerful applications. This workshop will also help students to use LabVIEW as an indispensable tool for industrial data acquisition and measurement, as well as using this knowledge to build applications that support the notion of industrial IoT very easily. The added advantage will be the Android app and web-based development.
With permission of Honorable Director Sir, I would like to call upon my teammates Kushag Verma and Mohammad Abu Zuhair, the founders of Lalten Tech, and at very young age they have done a very tremendous job, and they have already completed few of the industrial projects based on IoT, and they must be showing one of the solution that they have already delivered to one industry in Faridabad. So it will be a very live and enriching experience for students also, so that they will come to know about the live industrial solution that is being solved by these technologies. So with these words, I would like to thank you and over to you, Kushag. And I think now we can start the workshop with the kind permission of Honorable Director, sir. Thank you very much. Thank you for calling us. Thank you so much, Vikram, sir. So I want to tell you about myself. So I'm a certified LabVIEW associate developer from National Instrument, Texas. I've been in this industry from the last 2 years, and we have developed many industrial solutions. And today in this webinar, we are going to cover the topics majorly on LabVIEW, Python, and Android app development. So without any further ado, let's begin. So this is our webinar 0 to 1, bridging the gap between hardware and software. So let's continue. Yeah, so the thing you are seeing on the screen is our first product that we developed when we were in the second year of our graduation. So as you can see, it is very aesthetically beautiful, and it is a 3D printed lamp with the electronic systems, the PCB. So you can see where the webinar will go. The 3D printing technology basically belongs to the mechanical department, and the electronics and PCB designing belongs to the electronics department. So we are combining multiple technologies together and producing something very, you can say it's aesthetically beautiful also and useful also. So yeah, let's continue with our webinar session. So everybody here must be thinking about that why it is called 0 to 1 and why not 1 to n. So we have a answer for this. So जब आप देखेंगे कि जो भी प्रोग्रेस होता है, for example, doing new things, it is given by Peter Thiel basically. He is the writer of 0 to 1, a very famous book. So he tells us that whenever there is a new thing happening in our industry or in our country or in our whole environment, so the basic progress is from 0 to 1 or the vertical step. Taking the first step is always very difficult. So he mentioned it as taking the first step and labeling it as 0 to 1, and then we can only copy that things. For example, if you consider a printing press, for example, so a printing press can be installed in many factories, right? And you are just installing one printing press in some other part of the country and some printing press in another part of the country. So when you move from printing press to word processor, it may take a lot of time. Basically, हम लोग जब भी कोई innovation करते हैं तो वो बहुत time लेता है. But we have to remember कि ये पहला process होता है, पहला step होता है, जो कि हम लोग vertical direction में लेते हैं. So going from 0 to 1 is the most typical job of an entrepreneur plus engineer. So I hope it is clear now कि इस particular workshop का नाम हम लोग ने 0 to 1 क्यों रखा है. We are not going to copy things, we are going to innovate things, and basically we are going to introduce you to some new technologies and how we build them together. So now I'll move on. So this workshop focused on innovation through integrating different aspects of engineering and lastly arriving at a solution that solves a modern problem. As I have already told you कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस पूरे वेबिनार में, हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को, यूजिंग आवर टूल्स सच एज LabVIEW एंड एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट. वील आल्सो यूज पाइथन एट द बैक एंड टू सी कि डेटा कैसा आ रहा है. सो लेट्स मूव ऑन. So I would like to call Abu so he can tell you about the overview and the contents of this webinar. So over to you, Abu. Thank you, Kushag. So अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि 0 to 1 क्या है, हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम 0 to 1 क्यों रखा है, और अब हम लोग ये देखेंगे कि 0 to 1 क्यों इम्पोर्टेंट है. और
बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि 0 to 1 में हम लोग आगे आगे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंसेस। तो हम लोग नॉर्मली जब भी किसी सिस्टम को देखते हैं तो या तो उसे कम्प्लीटली हार्डवेयर समझते हैं या फिर कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर सोल्यूशन समझते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो। तो हम लोग आगे ये देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग इन दोनों टेक्नोलॉजीज को कैसे मिक्स करके एक बेटर सोल्यूशन बना सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो एक बहुत बड़ा अनटैप्ड डोमेन है इस पूरे मार्केट में, जो एक्चुअली लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं, और ये आगे जाके कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे जो कि लालटेन टेक एज अ कंपनी फिलहाल डिप्लॉय कर रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और फिर हम लोग उस टेक्नोलॉजी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे और देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी उस टेक्नोलॉजी को एक्चुअली बिल्ड करने के लिए। एंड फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया एज अ कंट्री या फिर लालटेन टेक एज अ कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और हम लोग फ्यूचर में कहाँ जा सकते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को लेके। सो मूविंग ऑन। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक मिट्स अल्टायर 8800 प्रोसेसर है। तो ये एक कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला कोई ऐसा मास मार्केटेबल डिवाइस था जिसको आप अपने घर में रख सकते थे और जिसे आप खुद से प्रोग्राम कर सकते थे। तो अगर आप किसी कैलकुलेटर को देखते हैं तो वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब के ऑलरेडी प्रोग्राम्स इनबिल्ट होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक कंप्यूटर में ये डिफरेंस होता है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक नया प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको आप प्रोग्राम कर सकते थे और रीप्रोग्राम कर सकते थे। मतलब बेसिकली आप इसमें कोड्स लिख सकते थे और कोड को रन कर सकते थे। ये पहला कोई ऐसा डिवाइस था जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के गैप को खत्म कर रहा था, क्योंकि आप कोड पूरे सॉफ्टवेयर में लिखते थे और आपका हार्डवेयर इसको रन करने की कोशिश कर रहा था। तो इन अ वे ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के डिफरेंसेस को खत्म कर रहा था। इस प्रोडक्ट की जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि इस प्रोडक्ट का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था वो बिल गेट्स ने खुद करा था। तो माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी इसी प्रोजेक्ट की वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अकेली ऐसी कंपनी थी उस समय जिसे ये आता था कि किसी एक कंप्यूटर जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है उसको सॉफ्टवेयर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग आज कहते हैं उसका पहला डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ही करा था। मतलब पहला जो आपका सॉफ्टवेयर था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था और माइक्रोसॉफ्ट ने उसे डेवलप करा था। सो मूविंग ऑन। ओके, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं या फिर हम लोग इससे क्या कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन समझने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि इसका एंड गोल ये होगा कि हो सकता है आप अपने फ्रिज से बात कर पा रहे हो या अपने टीवी से बात कर पा रहे हो। नॉर्मल जो ह्यूमन कॉन्वर्जेशन होती है वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो, लेकिन जब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं तो आप कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं या फिर माउस का यूज़ करते हैं। तो हो सकता है जब आप अपने टीवी या फ्रिज से फ्यूचर में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास कोई एक डिवाइस हो, जैसे हो सकता है आपके पास अपना फ़ोन हो या फिर हो सकता है वॉइस कमांड्स दे रहे हो। ये करके आप हो सकता है बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर पा रहे हो। और ये बस एक बहुत छोटा सा पार्ट है ओवरऑल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि स्मार्ट हैं वो एक दूसरे को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो हो सकता है आपका जो फ्रिज हो वो आपका एनर्जी कंजम्पशन मेजर कर रहा हो और उस हिसाब से अपनी एफिशिएंसी को भी कंट्रोल करे, ताकि आपके घर में जो बिजली की खपत है वो भी कम हो सके। जैसा आपको मीम में दिख रहा होगा हमारा एंड गोल यही है कि आपका फ्रिज है, टीवी है, ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं, सिर्फ होम ऑटोमेशन में नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिवाइसेस भी होते हैं, वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। और आपका जो फिलहाल इंटरनेट है जिसके एंड गोल्स पे अभी एंड पॉइंट्स पे ह्यूमंस हैं, उसको हम लोग और बड़ा कर सकें और उसके एंड पॉइंट्स पे मशीन्स भी आ सकें जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं। सो अब हम लोग ये देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कैसे एक्चुअली पॉसिबल है और ये हम लोगों को एक्चुअली कैसे करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कैसे एक्चुअली पॉसिबल है। तो आई वुड लाइक टू आस्क कुशाग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू अबू। सो अभी तक आप लोग ने ये जाना कि हम लोग का एंड गोल क्या होने वाला है। बेसिकली जैसा कि पिछले मीम्स में हम लोग ने देखा कि वी आर गोइंग टू सी कि एंड पॉइंट क्या होगा इस पूरे रिजल्ट का। आप लोग को एक डिवाइस है जिससे कम्युनिकेट करना है, तो उस डिवाइस के कई लेयर्स होते हैं। हम लोग बेसिकली इस पूरे स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट ब्लॉक्स कम्युनिकेट करते हैं एक साथ और कैसे हम लोग को एंड सॉल्यूशन मिलता है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहला जो ब्लॉक होता है
वो हार्डवेयर का होता है, दूसरा मीडियम होता है और तीसरा सॉफ्टवेयर होता है. द पार्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इजी, बट मीडियम पे कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या प्रोटोकॉल्स यूज होने हैं, ये हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. सो हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा, मोटर राइट्स आ जाएंगे, फिजिकल सेंसर्स आ जाएंगे, होम अप्लायंसेस आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स आ जाएंगे. सो बेसिकली हम लोग हार्डवेयर को दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं. एंड होम अप्लायंसेस में जैसा कि आपने देखा कि पिछले दो स्लाइड्स में यू हैव द टीवी और फ्रिज और एनीथिंग एल्स, द कॉफी मशीन. सो या ये सब चीजें होम अप्लायंसेस में आ जाएंगे. बट इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स यू हैव टू गो फॉर मोटर ड्राइवर्स, द VFD or the physical sensors or transducers. There are many heavy machines out there that needs to be controlled through softwares. So वो सारे हम लोग cover करेंगे industrial equipments के part में. Okay, then we'll move to software first. तो software हम लोग को क्या चाहिए? For example, आपको communicate करना है आपके fridge से. So you'll need to build a software. That software can be your mobile app, can be your desktop app, or any data acquisition software. वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गेट द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रिज, सो यू हैव टू पुट इन द टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर देयर, so that you can get the data out of it. And where you will represent it, you will represent it on a data acquisition software. Then उसको विजुअलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड टू गेट अ मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन. तो ये दोनों जो चीजें हैं, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये पूरी होंगी आपके एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के थ्रू. So we have basically discussed about the hardwares and the software. Now we'll discuss about the medium, कि कैसे मीडियम से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को. So basically there are 4 mediums when we talk about IoT. IoT in common, that will also represent industrial IoT. So you can communicate over the internet, you can communicate over the Bluetooth, you can communicate over Wi-Fi, you can communicate over cables. So cables का तो यहाँ पे यूज ही नहीं है, क्योंकि हम लोग IoT की बात कर रहे हैं, और अगर वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो it's not of our use. So we'll move to Wi-Fi. So Wi-Fi modules can be used in your home automations. We'll also move to Bluetooth, and you'll see that Bluetooth के रेंज जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं. तो ये वाला डिवाइस भी हम लोग यूज करेंगे when we are talking about home automation systems. We have only one system left, that is over the internet. So we will use the internet as a medium to connect the hardware to the software. I hope it is clear now that we have a software and we have an hardware, और दोनों को हम लोग मीडियम से कनेक्ट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए we are using internet as the medium. So now moving on. तो अभी तक हम लोग ये जान गए कि हम लोग का एंड गोल क्या है और बेसिक ब्लॉक्स क्या हैं. बट व्हाई डू वी नीड दिस इंटीग्रेशन? हम लोग को क्यों चाहिए? सो नेशनल इंस्ट्रूमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी. इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड इट हैज वेरी यू कैन से कॉम्पिटेड इंजीनियर्स. एंड उन्होंने एक पोल कराया था अपने इंजीनियर्स के थ्रू कि क्यों आप लोग को चाहिए ये इंटीग्रेशन, क्यों हम लोग हार्डवेयर का डेटा मंगवाना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर पे ओवर द मीडियम. सो मैक्सिमम ऑफ देम वोटेड फॉर व्यू डेटा अवे फ्रॉम ऑफिस. नियरली 43% ऑफ द इंजीनियर्स वोटेड फॉर दिस, कि उन लोग को जो डेटा था वो अपने ऑफिस के, जब वो लोग बाहर रहे तब भी उन लोग को डेटा चाहिए. तो ये क्यों ऐसा नीड है? क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट मैकेनिकल टेस्टिंग, और कोई भी टेस्ट, कंट्रोल या मेजरमेंट का जब एक्सपेरिमेंट चलता है तो इट गोज ऑन फॉर 40 आवर्स 60 आवर्स. सो उतना देर कोई बैठ नहीं सकता है वहां पे, एंड इट इज अ वेरी टायरिंग जॉब टू एनालाइज अ सिंगल डेटा सेट, every single data set. So the engineers want that all the data should be present on their mobile phones when they're away from the office. So I hope it is clear. The second point, we'll move to the first point, remote control. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है रिमोट कंट्रोल का, कि for example you are sitting at your office and you want to control the AC at your home. So what you will do, you will get embedded system where you will acquire the data from it. एम्बेडेड सिस्टम सेंसर के साथ आपका डेटा एक्वायर कर रहा होगा, और वो सारा एम्बेडेड सिस्टम डेटा को सर्वर पे अपलोड कर रहा होगा, और वो सर्वर कनेक्टेड होगा आपके मोबाइल ऐप से, जहां पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. देन विल मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स दैट कैन रन ऑन एनी मशीन. सो
अगर आपका कोई प्रोग्राम है जो केवल डेस्कटॉप पे चलता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. यू नीड टू गेट अ मोबाइल ऐप फॉर दैट ऑल्सो. यू नीड टू गेट एन iPad ऐप. So you can see we have to develop a program that is flexible, which means कि वो किसी भी डिवाइस पे रन कर रहे और उसमें हम लोग को कोई भी परेशानी ना हो. So I hope कि ये पॉइंट क्लियर होगा कि क्यों हम लोग को ये इंटीग्रेशन चाहिए. So now moving on, what are the typical रोड ब्लॉक्स. हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि हम लोग का एंड पॉइंट क्या होगा, हम लोग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, हम लोग को क्यों चाहिए, बट रोड ब्लॉक्स क्या क्या आते हैं कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करने में, IoT बेस्ड सिस्टम डिजाइन करने में. द फर्स्ट रोड ब्लॉक इज सेंसर्स एंड डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर किया जाता है वो है सेंसर और डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर. इफ यू डोंट नो हाउ टू मेजर टेम्परेचर, आप कैसे वो डेटा लेंगे. So you need to know particular sensors that are required for a particular application. You need to get the data acquisition hardware, and then you can move to the second point or second roadblock, that is data acquisition and data processing. So when you move to data processing, you'll need to develop some programs. हम लोग इस particular webinar के लिए LabVIEW को use कर रहे हैं and Python is also being used. So पहला point clear है, पहला रोड ब्लॉक क्लियर है, दैट इज सेंसर्स एंड डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर. हम लोग को वहां से डेटा मिलना शुरू हो गया. फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग द टेम्परेचर डेटा, देन यू हैव टू गेट द टेम्परेचर डेटा टू योर पाइथन स्क्रिप्ट. वो कैसे हम लोग लिंक करेंगे वो भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. देन वी विल विजुअलाइज दैट डेटा. ये सारी चीजें, सेंसर से डेटा एक्वायर करना, उनको प्रोसेस करना बेकार है अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन नहीं आता है. तो डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू IoT एंड डबल IoT. फॉर दिस only reason we are using app development and web development modules, and it is very necessary for an engineer from a background of electronics and electrical also to get the knowledge of app development as well as web development. So we are basically focusing on a data visualization part more and more. So let's move on. So now we'll solve a real world problem, and we'll see कि कैसे हम लोग ने एक real world problem को solve किया using our tools. So I would like to call Abu so that he can explain you this. Abu, over to you. थैंक यू कुशाल. तो हम लोग जिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो हम लोगों को एक कंपनी ने प्रोवाइड करा था, आरके इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस. तो फरीदाबाद में कंपनी बेस्ड है और ये लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के काम करते हैं मोस्टली. तो जो एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम थी वो ये है कि आपके पास एक एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग प्लांट है जहाँ पे आपको एल्यूमिनियम को मेल्ट करना है. और ऑब्वियसली अगर आप एल्यूमिनियम जैसे किसी मटेरियल को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास एक फर्नेस होगी जहाँ पे कोल बर्न हो रहा होगा. तो हम लोगों को दो चीज़ें करनी थी. पहला तो हम लोगों को कोल का फीड कंट्रोल करना था, मतलब हम लोगों को जो कोल है उसका कितना कोल आपका अंदर जा रहा है फीड में, हम लोगों को ये कंट्रोल करना था. और दूसरी चीज़ हम लोग को टेम्परेचर मेजरमेंट करना था. तो अगर आप किसी फर्नेस को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप टेम्परेचर को किसी एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए. मतलब अगर एल्यूमिनियम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है तो हम लोगों को 1200 सेंटीग्रेड से ऊपर से टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वेस्टेज हो रहा है कोल में. तो अगर हम लोग टेम्परेचर को किसी एक खास वैल्यू पे सेट करके रख सकते हैं तो वहाँ से आपको कोल फीड बहुत ज़्यादा बच सकता है. तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कोल का फीड भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो फिलहाल आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है उसको अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ देखने की कोशिश करें तो सबसे राइट में जो आपको दिख रहा है वो एक फीडर है. उसमें बेसिकली कोल के चंक्स वो सेव्ड रहते हैं और उसको हम लोग सबसे पहले पल्वराइजर में भेजते हैं. तो पल्वराइजर आपका एक मोटर लगी होती है बेसिकली और वो कोल को चर्न कर रही होती है छोटे छोटे पार्ट्स में. तो जितना फाइन आपका टैल्कम पाउडर होता है ये कोल को चर्न करके उतने फाइन मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में 200 मैश कहा जाता है, 200 मैश साइज. तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कोल को जितना ज़्यादा छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतनी अच्छे से बर्न होगा और उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कोल को चर्न करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग एयर के साथ ब्लो करके अपनी फर्नेस में ले जाते हैं और फर्नेस में वो कोल बर्न होता है. और आपके फर्नेस में एक थर्मोकपल लगा होता है जो कि उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली. तो अगर आप अभी जो स्क्रीन पे फोटो दिख रही है उसको गौर से देखेंगे तो जो आपको लेफ्ट साइड में 4 पाइप्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली फीडर्स हैं. वो चारों पाइप्स कोल को अंदर फीड कर रहे होते हैं.
और उसके बाद जो सामने आपको एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, वहां पे हम लोग एक थर्मोकपल इंस्टॉल करते हैं। और अकेले एक पॉइंट पे नहीं, थर्मोकपल्स आपकी चिमनी के चारों तरफ लगे होते हैं ताकि हम लोग हर साइड का टेम्परेचर ले सकें। और बेसिकली ये जो चार आपको पाइप्स दिख रहे थे, ये एक मोटर से कनेक्टेड होते हैं जो कि कोल को अंदर फीड कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि अगर आप वो मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कोल का फीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग आगे ये देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फोटो में समझना जरूरी है वो ये है कि जो स्कीम होता है चीजों का या फिर जो साइज है चीजों का, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जाते हैं तो ऐसी एक फर्नेस का साइज हो सकता है ये 25 से 30 मीटर लंबी हो या फिर 10 से 15 मीटर इसकी हाइट हो। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में या फिर इतने बड़े अगर आप कोई सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहां पे आप छोटे सेंसर्स नहीं लगा सकते। मतलब आप आर्डिनो जैसा कोई बोर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर में खराब हो जाएगा। तो हम लोग को ज्यादा रॉबस्ट सोल्यूशन चाहिए होते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और एक बेटर सोल्यूशन बना सकते हैं जो कि ज्यादा रॉबस्ट भी होगा। सो मूविंग ऑन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन को हम लोग कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि हम लोगों को दो चीजें करनी है, टेम्परेचर मेजरमेंट और कोल का फीड कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक सेंसर आता है जिसको थर्मोकपल कहते हैं हम लोग। तो थर्मोकपल बेसिकली आपके जो हीट वाला डेटा होता है, टेम्परेचर डेटा होता है, उसको वोल्टेज डेटा में कन्वर्ट करता है। तो एक थर्मोकपल होगा जो कि आपके फर्नेस में लगा होगा, और जब आपकी हीट बढ़ेगी फर्नेस के अंदर तो थर्मोकपल का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दोनों उसके आउटपुट्स में, वो वोल्टेज डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो अगर हम लोग वो वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर सकते हैं तो हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि रिलेटिव टेम्परेचर अंदर कितना होगा। तो ये जो टेम्परेचर डेटा है ये हम लोग एक डेटा एक्विजिशन कार्ड को भेजेंगे। तो आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि एक डेटा एक्विजिशन कार्ड क्या होता है। लेकिन बेसिकली ये आर्डिनो को एक ज्यादा बड़ा फॉर्मेट है। मतलब आर्डिनो जैसे छोटे डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, वैसे डेटा एक्विजिशन कार्ड ज्यादा बड़े डिवाइसेस में या फिर ज्यादा बड़ी मशीन के साथ यूज होता है। और ये भी नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का एक प्रोडक्ट है। तो ये आपके ब्रेन के जैसा काम करता है जो कि डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, जो कि आपको थर्मोकपल से मिल रहा है। वंस आपके पास हार्डवेयर पे ये डेटा आ गया, तो अब जो हमारे पास दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस डेटा को हम लोग कैसे एक सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराएं। क्योंकि जितनी भी हम लोग की प्रोग्रामिंग है या फिर जो भी हम लोग लॉजिकल डेटा किसी चीज पे इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर पे ही पॉसिबल है, वो हम लोग हार्डवेयर पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो पूरा हम लोगों का डेटा एक्विजिशन कार्ड पे डेटा आ रहा था, उसको हम लोग लैपटॉप पे सेंड करते हैं। और नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने डेटा एक्विजिशन कार्ड स्पेसिफिकली इसी प्रोसेस के लिए बनाया था कि आपका जो डेटा एक्विजिशन कार्ड पे डेटा आ रहा है उसको लैपटॉप पे सेंड करना ज़्यादा इजी होता है। तो आपको बस एक यूएसबी केबल लेनी होती है और आप अपने डैश से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। और आपके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसका नाम लैबव्यू है। तो लैबव्यू एक इंस्ट्रूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। मोस्टली ये क्या करता है कि आपका जो हार्डवेयर से डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करता है और उस पर लॉजिक लगाता है। तो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है जैसे आप कोड में लिखते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर 2000 डिग्री से ज़्यादा है तो मोटर की स्पीड कम हो जानी चाहिए, या फिर ऐसे जितने भी आप लॉजिक वाले प्रोसेसेस लिख रहे हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी वो होती है एक मोटर को कंट्रोल करना। तो आपकी जो मोटर है वो कोल का फीड कंट्रोल कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके कोल का फीड भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपकी जो मोटर है वो अराउंड 50 हॉर्स पावर की हो सकती है या फिर 60 से 100 हॉर्स पावर की भी हो सकती है। और इतनी बड़ी एक 3 फेज एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए आप डायरेक्टली उसे अपने लैपटॉप से नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों को एक लेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी मोटर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके, और वो लेयर आपको एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव प्रोवाइड कराता है। तो जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी पढ़ रखी है उनको पता होगा एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होती है। मोस्टली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है अल्टरनेटिंग करंट के, और उसके थ्रू हम लोग मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हम लोग इसको एक इनपुट सिग्नल देते हैं डीसी में, जो कि 0 से 10 वोल्ट्स के बीच में होता है। तो बिल्कुल अगर आप लेमैन टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ये होगा कि हम लोग अगर 0 वोल्ट देते हैं तो मोटर की स्पीड 0 होगी। अगर हम लोग 10 वोल्ट देते हैं तो मोटर की स्पीड मैक्सिमम होगी। और इन दोनों के बीच में हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग डीसी वोल्टेजेस देके। तो ये ऑब्वियस होगा कि अगर हम लोग एक वीएफडी को लेते हैं और उसको अपने डेटा एक्विजिशन कार्ड से जोड़ देते हैं, तो क्योंकि डेटा एक्विजिशन कार्ड आपका पूरा ब्रेन है, तो अगर उसके पास टेम्परेचर डेटा आ रहा है और हम लोग उस पर एक ऐसा कोड लिखते हैं जो कि टेम्परेचर डेटा के थ्रू वीएफडी की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका जो टेम्परेचर डेटा होगा
उसके ऊपर जो हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे उसके थ्रू आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कंट्रोल हो रही होगी, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आपकी मोटर को कंट्रोल कर रही होगी, जो कि फाइनली अगेन टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी, क्योंकि जो मोटर थी वो आपको कोल्ड फीड कंट्रोल कर रही थी। तो अगर आपका कोल्ड फीड कंट्रोल है तो आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होगा। ये हम लोग का पूरा क्लोज लूप साइकिल हो गया। और इसके अलावा इसमें एक और पार्ट है विजुअलाइजेशन का। मतलब हम लोग अभी ये जो पूरा सिस्टम बना रहे थे ये आपका लोकली अवेलेबल है, मतलब सिर्फ आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको ये डेटा इंटरनेट पे सेंड करना है तो उसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल भी चाहिए होगा, जो कि आपको LabVIEW के साथ मिलता है। तो हम लोग आगे देखेंगे एक्चुअली कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के देख सकते हैं। सो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात करा था टेम्परेचर डेटा का। तो टेम्परेचर डेटा हम लोग एक सेंसर से मेजर कर रहे थे, और ये सारे सेंसर्स और जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं ये एम्बेडेड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के अंदर आते हैं। इसको समझने का एक अच्छा तरीका ये है कि जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो जो नॉर्मल अप्रोच होता है लोगों का वो ये होता है कि या तो वो प्रॉब्लम कम्प्लीटली हार्डवेयर बेस्ड है या तो कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। जैसे अगर हम लोग एक बल्ब लगाने की बात कर रहे हैं तो एक बल्ब को चेंज करना एक कम्प्लीटली हार्डवेयर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके कोड में कोई बग आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना एक कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। लेकिन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ये खत्म हो जाता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एंड से अप्रोच करते हैं और एक सिंगल सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और ये पॉसिबल कैसे है ये हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो मूविंग ऑन। ओके, तो हम लोग थर्मोकपल की बात कर रहे थे। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक एक्चुअल थर्मोकपल है, और आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि इसका साइज अराउंड 1 फीट तक हो सकता है। तो आप इतना बड़ा सेंसर अपने घर में नहीं लगा सकते, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज होता है और काफी कॉस्टली भी होता है। ये हो सकता है 25,000 या 30,000 तक का आता हो। और ये सेंसर का जो रॉड वाला पार्ट है ये आपका फर्नेस के अंदर लगा होता है जहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा होता है, और दूसरे वाले एंड से वायर्स निकले होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको डेटा एक्विजिशन कार्ड से कनेक्ट करते हैं और टेम्परेचर डेटा को वोल्टेज में कन्वर्ट करके लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल सेंसर। नाउ मूविंग ऑन। तो हम लोगों ने देख लिया कि इंडस्ट्रियल सेंसर्स क्या होते हैं, और अगर आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स में देखेंगे तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आता है इंडस्ट्रियल सेंसर्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स में और रेजिडेंशियल सेंसर्स एंड रेजिडेंशियल कंट्रोलर्स में। तो ये डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स आते हैं वो भले सेंसर्स हों या फिर कंट्रोलर्स हों, वो सब ज़्यादा रॉबस्ट होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में कोई एक छोटा सा प्रॉब्लम या छोटा सा कोई एरर आता है कोड में तो उसकी वजह से हो सकता है वो फेटल हो या फिर उसकी वजह से बहुत सारी फेटालिटीज हो। तो इंडस्ट्री में हम लोग वो चांस नहीं ले सकते, वो एरर के चांसेस नहीं हो सकते। लेकिन रेजिडेंशियल सेंसर्स में रिलेटिवली हम लोग को उतना रॉबस्ट सिस्टम नहीं चाहिए होता है। अगर आपका जो टेम्परेचर डेटा है वो 1 या 2 डिग्री ऊपर नीचे भी है तो वो उतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग जब भी रेजिडेंशियल सेंसर्स या रेजिडेंशियल कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो रिलेटिवली चीप आते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स या इंडस्ट्रियल सेंसर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अभी जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वो एक डेटा एक्विजिशन कार्ड है जो कि हम लोग फिलहाल डिप्लॉय कर रहे हैं अपने थर्मोकपल के साथ। तो इसको जो इसमें जो आपको साइड में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिख रही हैं वो एक्चुअली कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग थर्मोकपल को कनेक्ट करते हैं। और जो आपको यूएसबी केबल दिख रही है उसके थ्रू ये लैपटॉप से कनेक्टेड होता है और आपके लैपटॉप पे कोड चल रहा होता है जिसपे ये सारा डेटा हम लोग सेंड कर रहे होते हैं धीरे धीरे। सो मूविंग ऑन। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने रेजिडेंशियल सेंसर्स की बात कर ली, इंडस्ट्रियल सेंसर्स की बात कर ली और इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स की बात कर ली। लेकिन रेजिडेंशियल कंट्रोलर्स को हम लोग को बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम लोग रेजिडेंशियल कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आर्डुइनो का होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली हार्डवेयर फर्म्स जितनी भी ऑनलाइन चलती हैं उस पर जाएंगे और ट्रेंड्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग आर्डुइनो से धीरे धीरे नोड एमसीयू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये ट्रेंड समझना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्डिनो रिलेटिवली हार्डवेयर में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है रिलेटिव टू नोड एमसीयू, क्योंकि नोड एमसीयू ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ पिंस कम है एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी ये स्विच क्यों हो रहा है, लोग आर्डिनो से नोड एमसीयू की तरफ क्यों जा रहे हैं? और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो नोड एमसीयू होता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो इससे हम लोग को ये पता लगता है कि सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होना डिवाइस को कितना जल्दी ऑब्सोलीट कर सकता है। आर्डिनो रिलेटिवली हार्डवेयर में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों को फ्यूचर में यही करना है कि हम लोगों को अपने आसपास के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको इंटरनेट से कनेक्ट करना है।
और इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जो डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे वो सारे डिवाइसेस धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते रहेंगे। तो हम लोग अब आगे यही करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपको फिलहाल प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा इंटरनेट पे कैसे सेंड कर सकते हैं वो समझेंगे। सो ओवर टू यू कुशाल। थैंक यू सो मच अबू। सो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि हम लोग के पास एक थर्मोकपल है और टेम्परेचर डेटा हम लोग को एक्वायर करना है। तो अभी ये क्लियर है कि फर्स्ट पार्ट जो होगा वो डेटा एक्विजिशन का होगा। देन सेकंड पार्ट क्या होगा कि हम लोग को वो टेम्परेचर डेटा जो आ रहा है उसको एनालाइज करना होगा कि टेम्परेचर ज्यादा है 1200 डिग्री सेल्सियस से कि कम है, और उसके बेसिस पे हम लोग को स्पीड कंट्रोल करना है अपने VFD से, एंड साइमल्टेनियसली वो सारा डेटा हम लोग को इंटरनेट पे भेजना है। सो ये जो दो प्रोसेस हैं जिनको मैंने 3 और 4 लिखा है, ये एक्चुअली एक के बाद एक नहीं होंगे, ये दोनों साथ ही में होंगे। ओके, सो अभी तक हम लोग को ये पता है कि डेटा एक्वायर हो चुका है, हम लोग ने टेम्परेचर एनालाइज कर लिया है, डेटा को हम लोग को इंटरनेट पे भी भेजना है और सेम डेटा को हम लोग को VFD तक पहुंचाना है ताकि स्पीड कंट्रोल हो जाए। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सारे इंडस्ट्रीज में वो होता है डेटा लॉगिंग। हम लोग इसको कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना भी काम कीजिए उसको लॉग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एरर मिल रहा है तो उसके कंडीशंस क्या थे, उस एरर पे क्या कंडीशंस थे टेम्परेचर के, प्रेशर के। अगर आपको वो टेम्परेचर और प्रेशर के डेटा मिल गया उस पर्टिकुलर एरर पे, तो आप अगली बार से कोई ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। सो वी हैव टू लॉग द डेटा व्हाइल परफॉर्मिंग आवर एक्सपेरिमेंट। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि कहाँ पे कैसे कैसे हम लोग का वर्क फ्लो हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन। सो अभी तक हम लोग ने बातें की कि LabVIEW हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे, LabVIEW एक्चुअली बहुत हेल्प करता है प्रोसेसिंग में, एंड सो बट वी नीड टू डिस्कस कि LabVIEW एक्चुअली है क्या। हम लोग को जानना पड़ेगा कि LabVIEW करता क्या है। नाउ मूविंग ऑन। सो LabVIEW इज a laboratory virtual machine, virtual instrument engineering workbench. So basically we construct virtual machines using LabVIEW. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी मल्टीमीटर देखा होगा तो मल्टीमीटर एक्चुअली में एक फिजिकल डिवाइस है और उसमें जो प्रोब्स लगे रहते हैं उससे आप अपने बैटरी के वोल्टेज मेजर करते हैं। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो आपको डिस्प्ले में बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है मल्टीमीटर में, हमें वही वोल्टेज अपने स्क्रीन पे चाहिए, अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चाहिए। सो आप ये पूरा टास्क कैसे करेंगे? अगर मैं ये बोलूं कि ये पॉसिबल है तो या इट इज पॉसिबल, वी आर डूइंग इट एवरी डे, बट ये कैसे पॉसिबल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो नाउ प्रोग्राम्स इन LabVIEW आर कॉल्ड VIs और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। हमने पहले ही बता दिया है कि देयर इज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट just like multimeter, and you are taking the data to the computer using our virtual instrument. So जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं LabVIEW में, it is called a virtual instrument. So now moving to the third point, data flow in this language is through wires and it is from left to right. So MATLAB जिसने भी यूज किया होगा उन लोग के लिए बहुत इजी होगा डेवलप करने के लिए। एक्चुअली LabVIEW ही एक टूल है जो कि इंडस्ट्रियल मशीनरी को कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से। वी हैव डेवलप्ड मेनी प्रोग्राम्स एंड इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लोग को अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो you need to integrate LabVIEW with PLCs and you need to integrate LabVIEW with the internet protocols, ताकि आपका जो भी डेटा है वो ओवर द इंटरनेट जा पाए थ्रू द फिजिकल डिवाइसेस। सो नाउ वील मूव ऑन एंड वील सी कि क्यों LabVIEW इतना इंपॉर्टेंट है और ये सही में कितना पावरफुल है। सो आई विल शो यू a meme and you can see that Java and C++ are fighting, and basically they are fighting for what is the best among them for data acquisition purposes, but LabVIEW comes in and defeats them all. So we'll see that how LabVIEW can defeat Java and C++. तो LabVIEW के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जब भी आप LabVIEW को ओपन करेंगे तो दो विंडोज खुलेंगे। पहला विंडो जो कि फ्रंट पैनल कहलाता है और दूसरा विंडो जो कि ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। सो फ्रंट पैनल इज बेसिकली द यूआई मींस यूजर इंटरफेस, और इस पे आप लोग अपना HMI बना सकते हैं। जिन्होंने इंडस्ट्रीज में थोड़ा भी काम किया वो जानते होंगे कि HMI इज द ह्यूमन मशीन इंटरफेस। सो इधर आप अपने कंट्रोल्स डाल सकते हैं एंड यू कैन गेट द इंडिकेटर्स ऑल्सो। बेसिकली हम लोग इनपुट को कंट्रोल्स कहते हैं and the output is called indicators. So I have made a small program, you can see,
that numeric 2 and numeric 4, numeric has 0 value, numeric 2 has 0 value, numeric 3 has 0 value. I've basically summed up these two, and the value is stored in numeric 3. For numeric 4, there is 45 in numeric 4, and I have connected this 45 to thermometer as well as the waveform chart. अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि yeah, actually we are seeing the UI, but programming कहाँ हो रही है? How we will use this logic? इसके पीछे कैसे प्रोग्राम हो रहा होगा? So I'll move on to the next slide, that is the block diagram. और जैसा कि मैंने बोला है, न्यूमेरिक और न्यूमेरिक 2 का डेटा सम होके न्यूमेरिक 3 में जा रहा है. I hope it is clear. And न्यूमेरिक 4 का डेटा कनेक्टेड है थर्मोमीटर से और वेवफॉर्म चार्ट से. This is graphical programming language, and you can see icons are present here, and it is summing up, and it is showing the value in a particular icon which is called the indicator. So अब ये क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोल्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं. साथ में ये जो आप लूप देख रहे हैं ये वाइल लूप है जो कि स्टॉप बटन से कनेक्टेड है. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि LabVIEW में प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है. यू कैन बेसिकली पिक एंड ड्रॉप द आइकन्स यूजिंग द माउस. And one thing which is very important, I want to tell you that LabVIEW में एक फैसिलिटी होती है highlight execution की. So majorly if you are running a program, you need to see the values running on a wire. वो आप कैसे देखेंगे? आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो और highlight execution को ऑन करते हैं, then you can see actual values which are running through the wires. So LabVIEW is a very, you can say, versatile language. It can work with data acquisition, it can work with logical operations, it can work with the internet modules, it can work with the Python modules too. So अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बनाता है LabVIEW को इतना strong. So the answer to that would be the inbuilt functions in LabVIEW. आप जब राइट क्लिक करते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम पे, then you can see the function palette, and you can see here that यहाँ पे libraries and executable हैं, Python programs हैं. You have to just place it over the block diagram and your Python program would be called from there. आपको बस लोकेशन डालनी पड़ती कि कहाँ आपका स्क्रिप्ट है और LabVIEW ही Python प्रोग्राम को कॉल कर लेता है. अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका एक, एंड आई वांट कि आप ये इमेजिन करें. फॉर एग्जांपल यू आर एक्वायरिंग द इमेज डेटा and you are getting some good data and some bad data. You want to just differentiate between them. So what will you do? आप Python से उसका स्क्रिप्ट बहुत easily बना सकते हैं, and you will call the LabVIEW function in Python और vice versa. आप Python से एक्विजिशन कीजिए और LabVIEW कॉल कीजिए, या LabVIEW से एक्विजिशन कीजिए और Python कॉल कीजिए. We would go for the second one. Why? Because आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्री में रेट बहुत तेज होता है किसी भी चीज का. For example, you have to process images of a pencil making machine. So वो 1 मिनट में you can say it produces thousands of pencils. तो वहाँ पे अगर आपको देखना है कि कौन सा पेंसिल का निब सही है या नहीं है, तो you would use LabVIEW for data acquisition and you will use Python script for detecting कि whether it is right or wrong. I hope it is clear now कि क्या LabVIEW को इतना पॉपुलर और इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है. Now, moving on, हम लोग को ये क्लियर हो गया कि डेटा एक्वायर हम लोग कर रहे हैं थर्मोकपल से. Then we are getting the data over LabVIEW. Then we will be sending the data to the internet using the HTTP protocol. एक बार अगर सर्वर साइड पे डेटा आ गया, then you can call anything. You can call a web application or an Android application. You can get the data over there, and if you have to control, you have to repeat the process vice versa. So I hope it is clear कि कैसे हम लोग LabVIEW से डेटा आगे भेज रहे हैं. आगे एक डेमो है जिसमें क्लियर और हो जाएगा, and I'll call Abu so that he can explain you this. So Abu, over to you. थैंक यू कुशाल. तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग कैसे थर्मोकपल से डेटा ले रहे थे. उस डेटा को हम लोगों ने डेटा एक्विजिशन कार्ड पे प्रोसेस करा. फिर उस डेटा को हम लोग LabVIEW पे सेंड कर रहे थे, जहाँ पे उस पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे थे. और फाइनली हम लोग ये डेटा को इंटरनेट पे सेंड कर रहे हैं थ्रू LabVIEW ओनली. तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक देखा है कि डेटा इंटरनेट पे जा रहा है. अब हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, और डेटा को इंटरनेट पे सेंड करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं. तो सबसे पहले जो सबसे इंट्यूटिव चीज़ हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप डेटा किसी एंटिटी को सेंड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डेटा वहाँ पे सेव हो, तो आपको एक डेटाबेस जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी.
तो हो सकता है वो जो आपके पास डेटाबेस है वो MongoDB का हो या फिर MySQL का हो, ये सब अलग अलग स्टैक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपके पास एक डेटाबेस होगा जहाँ पे डेटा सेव हो रहा होगा, और फिर आप वहाँ से डेटा फेच करके अपने, हो सकता है फ्रंट एंड को दे रहे हो, यानी कि वेबसाइट्स को दे रहे हो, या फिर हो सकता है आप सेम डेटा अपने एंड्रॉयड ऐप पे ले आ रहे हो, वहाँ पे आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो। और इसके अलावा एक थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आप ये सब के ऊपर मशीन लर्निंग के मॉडल्स लगा रहे हो, ताकि आप बेसिकली कोई एरर आने वाली है तो उसको पहले प्रेडिक्ट कर पाएं और ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली ये करना पॉसिबल कैसे है। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो मीन स्टैक है। अगर किसी ने ऑलरेडी ऐसे ऐप्स बना रखे हैं, वेब ऐप्स बना रखे हैं, तो उसको आइडिया होगा कि जो मीन स्टैक होता है वो 4 टेक्नोलॉजीज को मिला के बना हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है MongoDB। तो MongoDB आपका डेटाबेस है ऑब्वियसली, और ये डेटाबेस आपके जो इंटरनेट पे डेटा जाता है उसको सेव करने के लिए यूज होता है। तो अभी हम लोग जो लाइब्रेरी से डेटा इंटरनेट पे सेंड कर रहे थे उसको सेव करने के लिए हम लोग MongoDB का यूज करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है आपका बैकएंड फ्रेमवर्क, यानी कि एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस क्या करता है? एक्सप्रेस बेसिकली जावास्क्रिप्ट बेस्ड एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप MongoDB को लाइब्रेरी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मोंगो डेटाबेस है वो आपके इंटरनेट के एक सर्वर पे है, जबकि लाइब्रेरी आपके लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको एक कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है तो आपको कोई एक प्रोटोकॉल चाहिए होगा, आपको कोई एक ऐसा लिंक चाहिए होगा जो इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सके, और वो लिंक आपको एक्सप्रेस प्रोवाइड कराता है। तो एक्सप्रेस को यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि रिट्रीव, अपडेट, डिलीट या पोस्ट। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो आप डेटा के ऊपर प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग आगे के और डिटेल स्लाइड्स में देखेंगे। तो इसके बाद जो थर्ड आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी आती है, वो है Node.js। तो Node.js अगेन एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है, और ये सारी लॉजिकल कंडीशंस आपको प्रोवाइड कराती है। तो अभी तक हम लोग एक्सप्रेस को देख रहे थे जो कि आपके बैकएंड को डेटाबेस से जोड़ रहा था। अब हम लोग Node.js देख रहे हैं जो कि आपके बैकएंड को फ्रंट एंड से जोड़ता है। तो फ्रंट एंड पे जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन कराना चाहते हैं डेटा का, तो ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा आपके मोंगो डेटाबेस में सेव हो रहा है। हो सकता है आपको ग्राफ दिखाने हो, या फिर हो सकता है आपको ये चाहिए हो कि 5 बजे के बाद ही डेटा लॉगिंग स्टार्ट हो, और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये जितने भी लॉजिकल कंडीशंस हैं ये सारे आप Node.js पे प्रोग्राम करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग फ्रंट एंड को उससे कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो फ्रंट एंड है वो AngularJS होता है। तो अगर आप AngularJS को समझना चाहते हैं तो बेसिकली ये एक फ्रंट एंड प्रोटोकॉल है, फिर फ्रंट एंड लैंग्वेज है जिसपे हम लोग वेब एप्स बनाते हैं। तो जैसे अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास एक मोबाइल ऐप है तो वो एंड्रॉयड बेस्ड होता है, लेकिन जब आप सेम चीज़ को लैपटॉप पे रन करते हैं तो वो एक वेब ऐप बेस्ड एप्लीकेशन होता है, जो कि आपके ब्राउजर पे ही एप्लीकेशन के जैसा रन हो रहा होता है। तो AngularJS वैसी एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है, जो कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो वेब ब्राउजर है, उस पे आपके सारे कोड्स को रन कर रहा होता है, या फिर आपके जितने भी विजुअलाइजेशन प्रोसेसेस हैं उनको चला रहा होता है। तो Node.js आपका फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाएगा, और आपके फ्रंट एंड पे सारा डेटा शो हो रहा होगा। और अगर आपको ये नहीं चाहिए कि आप वेबसाइट्स पे शो करें, आप ये चाहते हैं कि अपने मोबाइल पे शो करें, तो आप एंगुलर को हटा के एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, या फिर iOS ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि डेटा इंटरनेट पे आ गया है, और इंटरनेट पे डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं, और उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोग मीन स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक जिनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स में फजीनेस है, या फिर जिनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैसे साथ में काम करेंगी, वो हम लोग आगे डेमो में क्लैरिटी देंगे आपको कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैसे साथ में काम कर रही हैं। सो ओवर टू यू कुशाल फॉर द डेमो। Thank you, Abu. So I'm going to present my entire screen. So it will take a minute. So आपको जो भी क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज पोस्ट कर सकते हैं हम लोग के कमेंट बॉक्स में, एंड we'll try to answer them all. So yeah, I'm just presenting my entire screen. I think everybody has to unpin from Kushag Verma's screen. Yeah, so my screen is visible, I think. Yes.
ओके, सो अभी हम लोग ने बात किया कि VIs क्या होते हैं. सो बेसिकली द प्रोग्राम्स इन LabVIEW इज कॉल्ड अ VI. सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे, सो यू आर सीइंग 3 VIs रनिंग इंडिपेंडेंटली. फॉर एग्जांपल, आपको ये पर्टिकुलर VI जो दिख रहा है जो सेट स्पीड पे है, ये VFD की स्पीड कंट्रोल कर रहा है एक्सटर्नली. एंड दिस VI इज बेसिकली द फर्नेस टेम्परेचर VI. सो लेट्स सी, अगर हम लोग मेन कंट्रोल पैनल से when you click the thermocouple button, so as you can see कि यहाँ पे टेम्परेचर एक्वायर होना शुरू हो गया है and we are getting the temperature. So we are basically working from home and I have simulated this particular you can say program so that our students can see कि कैसा लगता है जब real time acquisition होता है. So you can see there is a graph and you are getting the temperature data over here, and also you can set the speed of a motor from here. Yeah, as you can see the speed can be set through here. All of these data is being sent to the internet. अब ये कैसे काम कर रहा है, we'll dive in and हम लोग देखेंगे ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एग्जिट करूंगा एंड जैसे ही मैंने एग्जिट किया यू कैन सी कि यहाँ पे डेटा लॉगिंग है स्टॉप्ड, डेटा अपलोडिंग हैज स्टॉप्ड. एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि डेटा लॉगिंग स्टॉप हो चुका है, मतलब इंटरनेट पे डेटा जो हम लोग भेज रहे थे वो स्टॉप हो चुका है और डेटा अपलोडिंग भी स्टॉप हो गया. ठीक है, सो नाउ सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आप जो देख रहे हैं अभी वो है फ्रंट पैनल जो कि मैंने खुद डिजाइन किया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, एंड दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम. सो अभी जो आपने ब्लॉक डायग्राम देखा था वो बहुत छोटे प्रोग्राम के लिए था. बेसिकली LabVIEW की यही एक खासियत है कि जब आप लोग को बड़ा एक कोई प्रोग्राम बनाना रहता है तो चीजें इसमें बहुत सिंपल हो जाती हैं, बट जब आपको कोई बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाना रहता है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम फॉर Fibonacci, so it's very complicated in LabVIEW, but if you have to develop a data acquisition system, it's very easy. आपको थोड़ा सा समय लगेगा समझने के लिए, बट इट वुड बी वेरी इजी. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा पार्ट है एंड वी आर यूजिंग प्रोड्यूसर कंज्यूमर लूप हियर, एंड इफ वी कंसंट्रेट ओवर हियर and you can see thermocouple is written here, motor speed data is written there, timestamp data is written there. So जब भी हम लोग कोई डेटा भेजते हैं किसी भी मीडियम पे तो हम लोग उसके साथ टाइम स्टैम्प जरूर इंक्लूड करते हैं. कब वो डेटा आपके सिस्टम से उठ के इंटरनेट पे जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना. So over here you can see an icon which looks a bit different. So जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और प्रोग्राम खुल जाएगा. बेसिकली वी कॉल दिस एज सब VI. जब आप VI के अंदर कोई एक और VI यूज करते हैं देन वी नेम इट एज सब VI, एंड यू कैन जस्ट थिंक अबाउट अ फंक्शन इन अ प्रोग्राम. आप एक फंक्शन बनाते हैं और एक फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग पाइथन और जावा. सो जब आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो वो अपने में भी एक कंप्लीट प्रोग्राम रहता है. सो द सेम कंसेप्ट इज इम्प्लाइड हियर आल्सो, एंड लेट्स सी कि इसके ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं. सो दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द प्रोग्राम जो कि डेटा भेज रहा है इंटरनेट पे. सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प है जो कि मेन VI के टाइम स्टैम्प से डेटा ले रहा था. यू नो द पैरामीटर्स व्हिच आर बीइंग फेड इनटू द सब VI, और टाइम स्टैम्प है, टेम्परेचर है, RPM है, और ये JSON फॉर्मेट में होते हुए HTTP से पोस्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर लिंक पे. सो आई विल कॉपी दैट लिंक एंड आई विल पेस्ट इट इन माय ब्राउजर सो दैट यू कैन सी कि सही में डेटा जा रहा है कि नहीं. सो लेट्स सी, मैंने ये पहले से करके रखा है कि डेटा आपने इस लिंक को मैंने ब्राउजर पे पेस्ट किया हुआ है और हम देखते हैं कि वो ब्राउजर पे डेटा है कि नहीं एक्चुअली. सो या, so you can see there is lot of data around here, and we have been using it over you can say a month. So we have got many data sets. So हम लोग अब कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये कब भेजा जा रहा था. So you can see the date. अभी मैंने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है कोई भी डेटा को टाइम स्टैम्प के साथ भेजना. So you can see the date here, the timestamp which says 12/9/2020 10:38, which means the program was running at 10:38, and so I think it is clear कि कैसे हम लोग ये डेटा over the internet भेज रहे हैं उस particular link के मदद से. I can also show you the Python script which we are running on a Jupyter Lab notebook. So let me show you, and I've been programming
from a very long time, so there is a lot of data. I have to slide it down. So just give me a second. Yeah, so here you can see I have just run this program on 2/8/2020 at this timestamp, and we can acquire the temperature. As we can see, the temperature has been acquired and the motor speed is also been acquired through this. And you will also see that I have set a particular alarm at a particular temperature and the RPM. सो जब भी उसके ऊपर जाएगा, यू कैन से दैट जब भी एक्सीड करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर स्पीड को, तो ये अलार्म भी देगा. तो ये सारी प्रोग्रामिंग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ये सारी प्रोग्रामिंग हम लोग पाइथन पे कर रहे हैं, और पाइथन इंडिपेंडेंट काम कर रहा है क्योंकि वो डेटा लिंक से फेच कर रहा है, ना कि LabVIEW से फेच कर रहा है. आप ये पूरा काम LabVIEW पे भी कर सकते थे अगर हम लोग पाइथन नोड यूज करते थे, बट हम लोग को जब प्रोसेसिंग अपनी स्ट्रांग रखनी रहती है और लोड कम देना होता है अपने computer पे, then we use this method. So you can develop a script like this, Python script like this. You can see here web scraping script, and see the link around here, and यही link मैंने यहाँ पे भी पेस्ट किया हुआ है और ये सारा डेटा प्रेजेंट है इंटरनेट पे. सो मेरे लिए बहुत आसान है कि वो डेटा को मैंने फेच किया और उसके साथ अलार्म सिस्टम लगाया या कंडीशंस लगाए, और वो सारा डेटा अब मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर वेब VI या एंड्रॉयड ऐप पे भेज दूंगा जो कि पाइथन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और आप सीधे सीधे ये डेटा जो कि प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर लिंक पे एंड्रॉयड ऐप से भी मंगा सकते हैं. हम लोग थोड़ा और बात करेंगे LabVIEW के बारे में और LabVIEW को देखेंगे कि कैसे वो काम करता है. सो मैंने बताया था जब आप राइट क्लिक करते हैं VI पे तो एक फंक्शन पैलेट खुलता है. आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा फंक्शन पैलेट, and you can see there are lot of option, and you can see there are measurements option, DAC assistant. DAC assistant basically is a data acquisition assistant. You don't have to create a program to test your data. अगर आपको टेस्टिंग करना है तो आप सीधे सीधे ये VI लगा दीजिए, आपका डेटा आने लगेगा. You can see the structures में you can see the while loop, the for loop, मैंने कि जैसे उसमें उस प्रोग्राम में दिखाया था, and it's very easy. You can see कि मैंने बस pick and drop किया और while loop, you can see it's there on the block diagram, and you can also include many timing modules. कितने देर के लिए आपका एक पर्टिकुलर लूप वेट करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी मैंने शो कर दिया कि क्या होते हैं फंक्शन पैलेट इन LabVIEW. विल शो कि ब्लॉक डायग्राम पे कंट्रोल पैनल कैसे दिखता है. सो मैंने ये जो कंट्रोल लगाया है थर्मोकपल का, वो कहाँ से आया है? वो बेसिकली बूलियन कंट्रोल है जो कि बताता है कि इफ अ बटन इज प्रेस्ड और नॉट. मैंने क्लिक किया और प्लेस कर दिया, एंड यू कैन सी इट इज ऑल्सो बीइंग प्लेस्ड हियर. सो आपको ये नहीं करना होता है कि आप एक बार जो चीज फ्रंट पैनल पे डाल रहे हैं उसको फिर से ब्लॉक डायग्राम पे लगाएं. तो जैसे जैसे आपका UI बनता जाएगा वैसे वैसे पीछे आपका ब्लॉक डायग्राम भी बनता जाएगा, और यू कैन सी कि अगर मैं ब्लॉक डायग्राम पे भी लगाऊं तो फ्रंट पैनल पे भी आ जाता है वो चीज. तो इट्स वेरी इजी, कन्वीनियंट, एंड इट्स ऑल्सो यूज टू एक्वायर डेटा. सो इस डेमो से आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं चीज़ों को, UI कैसे हम लोग बना रहे हैं, फ्रंट पैनल क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, सब VIs क्या है, हम लोग डेटा कैसे भेज रहे हैं, एक लिंक पे भेज रहे हैं और वहां से डेटा हम लोग एक्वायर करके अपने पाइथन प्रोग्राम को दे रहे हैं. और सेम जगह हम लोग के अगर इस लिंक पे एक बार डेटा आ गया तो सेम तरीके से हम लोग अपने एंड्रॉयड ऐप्स पे भी मंगा सकते हैं. हम लोग आगे देखेंगे एक और प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग यूज करेंगे कि कैसे हम लोग ये डेटा एक्वायर कर सकते हैं. And as Abu has already told you about the mean stack, he will explain it. And yeah, so I think it's clear from the demo कि कैसे ये काम पूरा कर रहा है. So I'll resume with my presentation. Yeah. So moving on. सो अभी आपने क्या देखा कि एक ऑथेंटिकेशन विंडो आप डालते हैं. एक्चुअली ये प्रोग्राम मैंने बनाया था एक अपने क्लाइंट के लिए. सो आपको हमेशा एक ऑथेंटिकेशन विंडो डालना पड़ता है. बेसिकली आई एम यूजिंग द VI राइट नाउ, सो आई डोंट नीड एनी ऑथेंटिकेशन विंडो. तो उसके बाद कहाँ जाता है प्रोसेस? LabVIEW एप्लीकेशन पे. LabVIEW एप्लीकेशन आपने पूरा देखा कि कैसे रन करता है और कहाँ कहाँ डेटा भेज रहा है. देन द डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेस कंट्रोल पार्ट, आपने देखा कि कैसे टेम्परेचर का डेटा आ रहा था, मैंने सिमुलेट करके दिखाया. Then you can also control the VFD speed,
through your HMI, or you can say the UI of the LabVIEW. Then all the data being transferred to the web API. मैंने एक API पे सारा data भेजा using the link, and the last process was fetch data from anywhere and get notified. जैसे कि मैंने Python script का use करके दिखाया अभी आपको कि आप कहीं से भी Python से या web application से data fetch करके देख सकते हैं. So now moving on, अबू will tell you about the main stages कि कैसे इंटरनेट पे ये पूरा काम कर रहा है और कैसे API कनेक्ट कर रहा है डेटाबेस से एंड सो एंड सो. सो अबू, ओवर टू यू. थैंक यू कुशाल. तो हम लोग जैसे पहले मेन स्टैक की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि मेन स्टैक एक्चुअली होता क्या है. अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग मेन स्टैक कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में. तो हम लोगों को जो बेसिक नीड थी वो ये थी कि हम लोग के पास लोकल LabVIEW पे डेटा है और उसको हम लोग को इंटरनेट पे सेंड करना है. तो इसके लिए जो सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है बिल्डिंग एन API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो API को आप बेसिकली एक फंक्शन के जैसा समझ सकते हैं. जैसे आप जावा या पाइथन में कोई एक फंक्शन लिखते हैं, तो जब आप फंक्शन का नेम कॉल करते हैं तो वो फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, बस फर्क इतना है कि आप जो फंक्शन का नेम कॉल करते हैं वो आप एज ए URL करते हैं. मतलब हो सकता है आपका URL हो https://laltentech.com/ और उसके बाद कॉल API. तो जब आप कॉल API लिख के एंटर करेंगे तो कॉल API नाम का अगर आपके पास एक फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है सर्वर पे, तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. उस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने जो भी चीजें लिख रखी होंगी, जो भी आपने कंडीशंस लिख रखी होंगी, वो सारी चीजें धीरे धीरे एग्जीक्यूट होंगी. तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग फंक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं वो 4 चीजों के लिए होता है: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. तो क्रिएशन होता है डेटा हम लोग को पोस्ट करना, मतलब आपके पास जो भी डेटा LabVIEW पे है उसको इंटरनेट पे सेंड करना, वो होता है क्रिएशन, क्योंकि आप डेटाबेस में नए एंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं. सेकंड होता है रीड. तो हम लोगों ने डेटा इंटरनेट पे सेंड कर दिया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है. हम लोग वो डेटा हो सकता है अपने मोबाइल पे रीड कर रहे हो या फिर अपने लैपटॉप पे रीड कर रहे हो, या हो सकता है कोई मशीन लर्निंग का प्रोग्राम उसे रीड करने की कोशिश कर रहा हो. तो उसके लिए हम लोग रीड ऑपरेशन यूज करते हैं. फिर आता है अपडेट ऑप्शन. तो मान लिया आपने इंटरनेट पे कोई डेटा सेंड करा और आपको बाद में पता लगा कि उस पर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई डेटा पॉइंट चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं, जिससे हम लोग वो डेटाबेस में ऑलरेडी जो डेटाबेस में डेटा है उसमें चेंजेस कर सकते हैं. एंड फाइनली डिलीट. तो डिलीट इंट्यूटिव है कि हम लोग जो डेटा इंटरनेट पे सेव कर रहे हैं, कभी कभी हो सकता है आपको उसे डिलीट करने की भी जरूरत पड़े, तो उसके लिए हम लोग डिलीट ऑपरेशन यूज करते हैं. ये चारों बेसिक ऑपरेशन है जो कि हम लोग हमेशा यूज करेंगे किसी भी ऐसे API से इंटरैक्ट करने के लिए. तो ये जो 2-3 चीजें थी, ये आपका पार्ट है मीन स्टैक का. मतलब जो कन्वेंशनल मीन स्टैक होता है वो इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है. लेकिन अगर आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ मीन स्टैक का यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ टेस्टिंग टूल्स भी यूज करने पड़ेंगे, जिससे आप अपनी बनाई हुई APIs को टेस्ट कर सकते हैं. और उसमें जो सबसे पॉपुलर नेम है वो है पोस्टमैन का. तो पोस्टमैन क्या करता है कि मान लिया आपने एक API बना ली, अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप API टेस्टिंग कैसे करेंगे? तब आपको LabVIEW पे वो जो URL है उसे पोस्ट करना पड़ेगा, अपने LabVIEW प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास रिजल्ट सही सही आ रहा है कि नहीं. तो इसमें 2 प्रॉब्लम है. पहला तो ये कि हो सकता है आपका जो API आपने बनाया है उसी में कोई बहुत बड़ी एरर हो जो कि आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि आपके LabVIEW वाले प्रोग्राम में एरर हो. तो ट्रैकिंग ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर आपके पास नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा है जिससे आप डील कर रहे हैं. उसको आसान बनाने के लिए हम लोग LabVIEW वाला पार्ट पूरा हटा के टेस्टिंग में पोस्टमैन का यूज करते हैं. तो पोस्टमैन के थ्रू आप किसी भी API को हिट करके और उस पर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं. तो आपकी जो API टेस्टिंग है वो कम्प्लीटली अलग से होती है, और LabVIEW के जो प्रोग्राम्स है उनकी टेस्टिंग बिल्कुल अलग से होती है. तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है. फिर जो सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है ऑटोमेशन की. तो ये हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे, ये हम लोग कोड डिप्लॉयमेंट का जो ऑटोमेशन है उसकी बात कर रहे हैं. तो मान लिया आपने कोड लिखा अपने लैपटॉप पे और आपको वो सर्वर पे सेंड करना है, तो उसके लिए जो सबसे सबसे नाइव प्रोसेस है वो ये है कि आप पूरे कोड को कॉपी करेंगे, अपने सर्वर पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे और वहाँ पे पोस्ट करके उसे रन करेंगे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस प्रोसीजर होता है. तो इस प्रोसीजर को सिंपल बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि CI टूल्स का यूज़ करते हैं. CI टूल्स, CI/CD टूल्स मोस्टली ऑटोमेशन के काम आते हैं. तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आप लैपटॉप पे बैठेंगे और आपने सारा कोड लिखा, और जब आप उस कोड को कमिट करते हैं या फिर जब आप उस कोड को सेव करने की कोशिश करते हैं, तो वो कोड में जितने भी न्यू चेंजेस हैं वो सब इंटरनेट पे शो होने लगते हैं. मतलब आपके पास जो सर्वर है वो सर्वर पे भी वो सारे कोड डिप्लॉय हो जाते हैं. ऋषभ कश्यप, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन. ऋषभ.
थैंक यू। सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो CI टूल्स हैं वो CI टूल्स कैसे ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं। एंड फाइनली हम लोग जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं वो है AWS एम्पलीफाई। तो AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज, और एम्पलीफाई उनकी एक टेक्नोलॉजी है या फिर आप कह सकते हैं एक सर्विस है, जिसके थ्रू हम लोग मीन स्टैक पे बनाए हुए एप्लीकेशंस को डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आपको जो बैकएंड पे जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सब देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अपना जो पूरा कोड है उसको उठा के इंटरनेट पे सेंड कर सकते हैं और वो डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा एक सर्वर पे, जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे थे, इसका जो फाइनल गोल था वो ये था कि आपका जो पेलोड है यानी आपके पास जो डेटा है उसको हम लोग एक रिजल्टिंग विंडो में शो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही करते हैं कि आपके पास एक URL है, आपने URL को हिट करा और आपके पास डेटा रिस्पॉन्स में आने लगा, जिसको हम लोग अपने मोबाइल पे रिट्रीव कराएंगे और अपने वेब एप्स पे डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। सो ये पूरा प्रोसीजर था जो कि हम लोग मीन स्टैक में यूज करते हैं किसी भी नॉर्मल लोकलाइज डेटा को इंटरनेट पे सेंड करने के लिए और अलग अलग डिवाइस से रिट्रीव करने के लिए। तो अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लालटेन टेक एज अ कंपनी कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत इंडियन प्रॉब्लम्स है जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज में आती हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप लैबव्यू या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को देखेंगे तो इसका वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा बड़ा है। हो सकता है आपको इंडिया में ना पता लगे, लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसका जो सबसे अच्छे दो एग्जाम्पल्स हैं वो टेस्ला और स्पेसएक्स का है। तो आप जानते हैं जैसे कि टेस्ला जो है वो ऑटोमेटिक कार्स बनाती है जो कि अपने आप ड्राइव हो सकती हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जो टेस्ला का ऑटोमेशन वाला पार्ट है, यानी कि जो पार्ट कार एक्चुअली डेवलप करता है, वो भी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। मतलब आपके जो कार है वो स्टार्टिंग से लेके मेटल स्क्रैप से लेके जो एंड प्रोडक्ट है वो 95% सिर्फ रोबोट्स बनाते हैं, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी हाथ नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 95% कार ऑटोमेशन करना है, यानी कार को बनाने वाले प्रोसीजर को ऑटोमेट करना है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और टेस्ला इस पूरे काम को बहुत आसानी से करती है क्योंकि वो लोग LabVIEW का यूज करते हैं। वो लोग भी LabVIEW और सिमिलर सेंसर्स यूज करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल हैं अपने सारे रोबोट्स को ऑटोमेट करने के लिए। तो उनके जितने भी रोबोट्स होते हैं उनको एक दूसरे की पोजीशन भी पता होती है। तो अगर एक रोबोट ऑलरेडी नट ए को टाइट कर रहा है तो हो सकता है जो रोबोट बी होगा वो तब तक पेंट जॉब कर रहा होगा, और हो सकता है आपका जो रोबोट सी है वो तब तक विंडशील्ड लगा रहा हो। तो इस तरह से उनका जो पूरा प्रोसीजर है वो काफी फास्ट हो जाता है और ह्यूमन एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ऐसा हाइपर ऑटोमेशन टेस्ला पहली कंपनी है जिसने करा है या जिसने अचीव करा है ये करना। और ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि टेस्ला ने LabVIEW का यूज करा और ऐसे सिमिलर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करा जिसके थ्रू वो लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर रहे थे। जो दूसरा एप्लीकेशन है वो इवन इससे भी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे स्पेसएक्स LabVIEW का यूज करती है। और स्पेसएक्स LabVIEW सिर्फ छोटे छोटे प्रोग्राम्स में नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कर रही है। और वो कैसे पॉसिबल है ये आगे आपको कुशाग्र बताएगा। सो ओवर टू यू कुशाग्र। या थैंक यू अबू। सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पेसएक्स यूज कर रही है LabVIEW एप्लीकेशन को। आपको जैसे मालूम होगा कि स्पेसएक्स रॉकेट्स स्पेस में भेजते हैं और दोबारा वही रॉकेट अर्थ पे लैंड करते हैं। अगर आप इसके CEO से फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क इलॉन मस्क की व्हाट इज द बेनिफिट, कि क्या बेनिफिट है सेम रॉकेट को यूज करने का, तो वो कहेंगे कि इट्स वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, इट्स वेरी फ्यूल एफिशिएंट एंड हम लोग को डेटा मिलता है। But when you will ask the engineers actually working at SpaceX, there is an interview on YouTube. You can go and watch there. Then they'll say that actually we need the test measurement data. For example, the temperature data, the pressure data, and the atmospheric data, which the rocket go through when it's going from Earth to the space and back from space to the Earth. So अगर हम लोग को ये data मिलने लगा, there are basically millions of sensors present on a SpaceX rocket. यहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, थर्मोकपल का डेटा ले रहे हैं और VFD की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ LabVIEW। बट व्हेन SpaceX uses it, it basically use it on millions of sensors। बेसिकली वहां पे अलग अलग गैस लीक कितना हो रहा है एंड टेम्परेचर क्या हो रहा है, एंड देयर आर इनॉर्मस पैरामीटर्स दैट हैज बीन यूज्ड इन SpaceX। जब आपको ये पूरा डेटा मिलता है तो उससे फायदा क्या होता है कि अगली बार जब आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये सारा डेटा लॉग्ड रहता है और हम लोग के पास एक अच्छा डेटाबेस रहता है कि क्या करेंगे हम गलती नहीं होने के लिए और क्या किन कंडीशन से गलती हो सकती है। सो नाउ आई विल मूव ऑन। तो व्हाट यू कैन डू और व्हाट वी एज अ स्टार्टअप can do
So we basically deal in 4 different types of you can say categories. First one is industry 4.0 solutions. जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, 4.0 means you can say connected industries. सारी चीजें connected रहें over the internet and we can access it. The second one is home automation system, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपने फर्स्ट स्लाइड में कि हम लोग ने जो प्रोडक्ट बनाया. Then third one is product development. It's basically very necessary कि आप अगर कोई चीज सॉल्यूशन में दे रहे हैं तो उसको आप पूरे एक प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दें. और चौथा जो है वो इन सारी चीजों का परमिटेशन आप कह सकते हैं कि ये तीनों चीज हम लोग कैसे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज 4.0 सॉल्यूशंस में हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं. सो वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस आवर स्टूडेंट्स टू सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स. सो अभी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से जुड़े होंगे, इवन CSIT एंड मैकेनिकल टू, they have been doing many projects in their academic session. So we have a small project idea which you can perform in your home and you can get the results and you can see कि कितना powerful हो जाता है when you talk about the integration between software and hardware. Okay, so now I'll move on. And the project named, as we already discussed, Smart Lamp. And इस particular lamp की ये खासियत होगी कि जब भी कोई person room में होगा, then it will automatically switch on या switch off the lights of the room. And we'll also incorporate something like Bluetooth, and we'll see that if it can be controlled through our mobile application or not. So basically problem statement यही है कि आपको एक ऐसी चीज बनानी है जो कि आपके energy save करे when a person is in the room or when the person is not in the room. So we'll discuss कि हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं. So ये basically एक पूरा IoT solution हो जाएगा, ये home automation में आएगा. The previous one which we developed was about the double IoT, industrial IoT. So we'll see कि कैसे हम लोग इसको proceed कर सकते हैं. एक खासियत हर प्रोजेक्ट में ये होती है कि सबका पहला प्रोसेस सेम होता है. पहला प्रोसेस सेम मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द BOM, बिल ऑफ मटेरियल. सो वी हैव बेसिकली 4 major BOM. The first one would be PIR sensor, the second Arduino, the third one would be bulb, and the fourth one would be relay. So आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कनेक्टिविटी लेंगे. And the circuit diagram is shown in the next slide. So आप जैसा कि देख रहे हैं कि PIR सेंसर से डेटा आ रहा है और वो Arduino में जा रहा है, and then in turn the Arduino is connected to the relay and it is controlling the bulb. So relay ही क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका पर्टिकुलर एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम लोग आई डोंट थिंक सो कि सबने माइक म्यूट किया है. सो जिसका भी माइक खुला है प्लीज म्यूट इट. Yeah, Mukesh Kumar, please mute your mic. Yeah. Okay, I'll continue. So when you see it, you can have a guess कि कैसे हम लोग रिले का यूज कर रहे हैं. बेसिकली हम लोग को 5 वोल्ट के सिस्टम से, 5 वोल्ट DC वोल्ट के सिस्टम से हम लोग को 220 वोल्ट के बल्ब को कंट्रोल करना है. तो यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली वायर इट, यू हैव टू यूज सम mechanical switch or something like that. You can also use triac or something like that, but we are using relay. So जब रिले से आप कनेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर सिग्नल्स पे वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता है. हम लोग के डिजाइनिंग के हिसाब से क्लियर है कि हम लोग कब इसको ऑन या ऑफ करना चाह रहे हैं. When the PIR sensors goes high, it should switch off the light, and when the PIR sensor goes low, it should switch on the light. So moving on, जब आप ये पूरा प्रोग्राम अपने Arduino पे लिखेंगे, then it would look something like this, and we have basically said that motion ended and motion detected for anyone present in the room. So जब कोई person present होगा आपके room में, then it would say that motion is detected, and when no one is present it would say motion ended. And this is the particular you can say the program which we are using on Arduino. So now I'll move on. I hope it is clear कि कैसे हम लोग ये basic integration कर सकते हैं. So now we'll see that how we'll integrate it with the mobile app. So we basically need 2 modules. One would be the mobile application and the second would be the Bluetooth module. Bluetooth module means HC05. The technical name for it is HC05, and you can basically connect it to the Arduino and you can send all the data to your mobile application. और अगर एक बार ये communication protocol successful हो गया, that is the serial communication, then you can create your mobile application, which is a very
you have to make a dedicated software for every application. So मैं ये recommend बिल्कुल नहीं करता हूँ अगर आप Google Play से जाके कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो कि Arduino ऑलरेडी डाला रहता है गूगल ऐप पे, क्योंकि इट्स ओके फॉर अ डेमो, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट और you can say a product, then you need to understand how web application and how Android application actually works. So if you are going to develop a mobile application, then incorporate the Bluetooth module with it, creating sockets, and all the data which is being sent to the Bluetooth will be received by the mobile application too. So इसको हम लोग कैसे सर्किट में लगाएंगे, ये beyond the scope of this webinar है, so we'll discuss it further in our courses. So moving on, तो I want to make sure कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड इंडिया एज अ कंट्री कहाँ पे स्टैंड करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्टार्टअप एंड क्या जरूरत है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की और इसका कितना स्कोप है. सो अबू प्लीज एक्सप्लेन दिस. ओवर टू यू अबू. थैंक यू कुशाल. तो अभी आपको जो स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स का डेटा है. तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स किसी भी कंट्री में ये इंडिकेट करते हैं कि वो कंट्री में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा है. तो अगर आप देखेंगे तो चाइना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स अभी तक लगाए जा चुके हैं. उसके बाद आता है जापान, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया अभी भी काफ़ी नीचे लाया करता है ये लिस्ट में. और ये एक्चुअली कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि जो नए स्टार्टअप्स उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है. क्योंकि अगर आप इंटरनेट का ग्रोथ देखेंगे पिछले 20 ईयर्स में, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं उनका ग्रोथ हो सकता है थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ हो, लेकिन ग्राफ रिलेटिवली सिमिलर होता है. मतलब इंटरनेट जब भी किसी कंट्री में बूम करता है तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है. और ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स जो भी इंटरनेट डोमेन में आए हैं वो हर कंट्री में सिमिलर है. जैसे इंडिया में ओयो आया या फिर बायजूस आए, ऐसे जितने भी स्टार्टअप्स थे वो सब इंटरनेट पे बेस्ड थे. और जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा, वैसे वैसे ये सारे स्टार्टअप्स भी धीरे धीरे बड़े होते गए. तो वंस इंडिया में जब इंडस्ट्रियल रोबोट्स का भी टाइम आता है, जब इंडिया में इंडस्ट्रियल रोबोट्स या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी ग्रो करना शुरू करता है, तो सेम चीज इस डोमेन में भी होगा. मतलब जितने स्टार्टअप्स ऑलरेडी इस डोमेन में काम कर रहे होंगे वो कुछ सालों में हो सकता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करें. मतलब हो सकता है 1000 टाइम्स या फिर 2000 टाइम्स उनका ग्रोथ हो हर साल. और ये एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज में देखा है. चाइना में बहुत सारे हार्डवेयर स्टार्टअप्स हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था. और वंस जब चाइना में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आना शुरू हुआ तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से स्टार्ट हुई. और ये सेम चीज इंडिया में भी होने वाली है. मेक इन इंडिया हो गया या फिर स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये एक्चुअली इंडिया में प्रोडक्शन को इसीलिए इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक कंट्री होती है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी पे डिपेंड करती है. जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है तो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सब ट्रेडिंग करती हैं. मतलब ऑलरेडी बने हुए सामान को बेचती हैं या फिर खरीदती हैं. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो नई चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं, वो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज बनना शुरू करती हैं. तो इंडिया ऑलरेडी बहुत सालों से एक ट्रेडिंग कंट्री है और अब वो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टर्न कर रहा है. तो फ्यूचर के कुछ ईयर्स में ये होगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो किसी भी डोमेन में है बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू होगी. और जब भी मैन्युफैक्चरिंग किसी एक खास डोमेन में बहुत तेजी से ग्रो करती है तो ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट्स या फिर 2 लाख प्रोडक्ट्स पर डे डिलीवर कर रहे हैं तो वो ह्यूमन से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको रोबोट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये पक्का है कि जो इंडिया का ग्रोथ है वो अभी कहीं भी राय करता वो कुछ सालों में ऊपर जाते जाते वहीं पे पहुंचेगा जहाँ पे फिलहाल चाइना है. और जब ये ग्रोथ एक्चुअली स्टार्ट होगा तो वो हर आदमी या फिर हर वो स्टार्टअप जो इस डोमेन में ऑलरेडी काम कर रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे वो सारी टेक्नोलॉजीज आती होंगी जो इस डोमेन में रिक्वायर्ड होती हैं. और हम लोग एज ए स्टार्टअप यानी लालटेन टेक एज ए स्टार्टअप यही करने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो भी सर्विसेज हैं वो इंडिया फ्रेंडली बनाते हैं. मतलब सर्विसेज को रिलेटिवली चीप रखते हैं और जो इंडियन प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और हर वो इंजीनियर जो इस डोमेन में काम कर रहा है वो इस बात को श्योरली समझ सकता है कि अगले कुछ सालों में उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, क्योंकि इंडिया में भी ऑटोमेशन वाला जो बूम है वो आना स्टार्ट हो गया. सो ये ग्राफ का बस यही बेसिक मोटिव था, आपको ये समझाना कि एक्चुअली ये डोमेन कितना ज़्यादा बूम कर रहा है और इसका फ्यूचर कहाँ लाई करता है. सो मूविंग ऑन, फिलहाल आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा जो कि रॉबर्ट हाइन का है. और ये पूरा कोड सम अप ये करता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स. मतलब आपको किसी एक खास चीज में हमेशा स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक्चुअली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या फिर किसी भी डोमेन में एज ए ह्यूमन बीइंग बेटर होना चाहते हैं तो आपको बस कोई एक चीज में स्पेशलाइज नहीं करना चाहिए, आपको बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में नॉलेज होनी चाहिए.
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें लगता है इलॉन मस्क हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसे उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे या फिर उसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो सिर्फ ऑटोमेशन वाला पार्ट नहीं जानता, मतलब उसे सिर्फ हार्डवेयर ऑटोमेशन नहीं आता, बल्कि उसे सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग वाला पार्ट है वो भी उतने अच्छे से आता है। तो उसके जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वो भले स्पेसएक्स हो या फिर टेस्ला हो, न्यूरल लिंक हो, इन सब में जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है वो खुद ही है। और इसका मेन रीजन यही है कि वो सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशंस नहीं समझता, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो गैप लाई करता है उसको फिल करना जानता है। उसे ये पता है कि हम लोग किस सोल्यूशन को कब हार्डवेयर के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और कब सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। और वो गैप जो भी इंसान फिल करने की केपेबल होगा, वो फ्यूचर में जाके ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बना सकता है जो कि फिलहाल हम लोगों के लिए सोच पाना इम्पॉसिबल है। सो ये कोड का बस मेन जो मोटिव था वो आपको ये समझाना था कि एक्चुअली स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके एक सिंगल सोल्यूशन बनाना सीखें। सो नाउ आई विल रैप इट अप हियर। My name was Abu Zuhair and I am the other founder of Laltain Tech and a certified KUKA robot programmer from Germany. So over to you, Kushag. You can continue with the rest of the slides. Yeah, thank you, Abu. So as you can see, we are the online skill development partner of Creative Genic Solutions, and we thank Vikram sir for this opportunity. We also thank Ashwini sir for letting us, for this webinar, and director sir also. And so we have this micro course which is running on Android systems, and it is actually audit free. You can basically enroll yourself and you can learn for free. And if you want the certificate, you can just pay for it later. And we want that the students which are basically seeing this webinar also join our team and also work with us solving new types of problem. And we are basically very young, and we also want the workforce to be very young. So this is our initiative in the field of you can say IoT and double IoT. We have this course which is free, and you can just join in. We are starting it from 15th of this month, and we'll be looking forward for your support. Yeah, so I'll wrap it up. Thank you so much, and please give your feedback for the certificates too. So I'll share the link. Abu, please share the link, everybody. Thank you so much. Thank you, Abu and Kushag. Am I still audible? Yeah, sir, you are audible. Thank you so much. Thank you, Kushagra and Abu, for such a beautiful and informative webinar. I think this is one of the best webinar I've ever attended or coordinated. You talked about the combination of hardware, software, and internet, which is the current trend in the industry. And also, Abu in the last said that we cannot be concentrated in one particular skill. We should be knowing all kind of skills in the present scenario to solve the problems. We should be knowing whether we are from civil engineering or electrical engineering or any other branch, we must be having some kind of computer skills. So one very important slide that Abu shared, that India is a growing manufacturing country, and there is going to be a very large demand in industrial automation sector. So the students who are planning to go for a career in this field, there is a huge opportunity, and I think this is one of the most important things that you shared with us today. So I would like to congratulate both the speakers for such a